Good morning everyone. Today I will teach you numerical which is based on income method. So question number 1, given the following data, find net domestic income, B gross domestic income, C net national income and net national product at market price. So here items, and in this column its value are given. Indirect taxes 8,000, subsidies 1600, depreciation 1500, mixed income of self-employed 20,000, operating surplus 9,000, net factor income from abroad minus 200, compensation of employees 21,000. We know that net domestic income is equal to compensation of employees plus operating surplus plus mixed income. Now what is the value of COE? COE 21,000, compensation of employees 21,000 plus OS operating surplus 9,000 plus MI mixed income of self employees 20,000. So 21,000 plus 9,000 plus 20,000 will be rupees 50,000 crores. Now B number, we have to find out gross domestic income. We know that gross domestic income is equal to formula net domestic income cross depreciation plus depreciation. So net domestic income, the value of net domestic income is rupees 50,000 crores. Now we put the value of 50,000 in the place of net domestic income plus depreciation is given 1,500. So 50,000 plus 1,500 will be 51,500 crore. Next question C, net national income. Net national income is equal to net domestic income plus NFIA, net factor income to abroad. Here net domestic income is 50,000 plus NFIA is given minus 200. So rupees when we subtract 200 from 50,000, then it gives rupees 49,800 crore. D, we have to find net national product at market price. So net national product at market price is equal to net national income plus indirect taxes minus subsidies. So net national income is equal to 49,800. 49,800 C net national income plus indirect taxes. Indirect taxes is 8,000. So indirect tax is 8,000. 49,800 plus 8,000 minus subsidies is 1,600. So 49,800 plus 8,000 will be 57,800 minus 1,600. It gives us rupees 56,200 crores. Now question number 2, given the following data, find a domestic income and B national income. So A number, domestic income is equal to, you know that COE plus OS plus MI. Here CO is 5,000. CO is 5,000 plus COE means wages 5,000 plus social security contribution 600. So 5,000 plus 600 plus OS operating surplus. It includes rent, interest, dividend and undistributed profit. So 2000 plus 500 plus dividend 1000 plus corporate profit tax 700 and MI mixed income 800. Mixed income is 800 is equal to rupees 11,000 lakh. Rupees 11,000
lakh. Now we find national income. So national income is equal to domestic income plus NFIA. Domestic income is 11,000 and net factor income from abroad is equal to 1,000. So 11,000 plus 1,000 is equal to rupees 12,000 lakh. Now question number 3, calculate net national product at factor cost from the following data. National debt interest 60, wages and salaries 600, net current transfer to abroad 20, rent 200, transfer payments by government 70, interest 300, net domestic product at factor cost accruing to government 400, social security contributions by employers 100, net factor income paid to abroad 50, profits 300. So we have to find out NDPFC. National product at factor cost. National product at factor for cost. First, I will calculate NDPFC, net domestic product at factor cost, is equal to COE plus OS plus MI. COE is 600 plus OS is 100, MI is 200. See here. COE, compensation of employees. Where is compensation of employees? It will be wages and salary 600 and social security contribution by employers 100. So 600 plus 100 plus OS, operating surplus. Operating surplus will be the value of rent 200, interest 300 and profits 300. So I will write here 200 plus 300 plus 300. Value of MI, mixed income, is not given. So I will take 0. 600 plus 100 plus 200 plus 300 plus 300 plus 0 gives rupees 1500 crore. Now I find NNPFC, means national income, is equal to NDPFC minus net factor income paid to abroad. जब आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड लिखा हुआ रहेगा तो यहाँ फार्मूला में क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा. अगर पेड टू एब्रॉड रहता है तो माइनस करेंगे एनडीपीएफसी में. इज इक्वल टू 1500 माइनस नेट फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड इज गिवन 50. सो 1500 माइनस 50 इज इक्वल टू रुपीज 1450 करोड़. Now question number 4, calculate net national product at factor cost from the following. जो डेटा में देख रहे हैं आप, यहाँ 10 आइटम्स दिया गया है टोटल और इसमें फाइंड क्या करना है आपका, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मींस नेशनल इनकम फाइंड करना है. तो वी नो दैट एनडीपीएफसी इज इक्वल टू सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई. तब इसमें देखेंगे कि सीओई कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का वैल्यू कितना दिया गया है. कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज वेजेस एंड सैलरीज होगा एक, इसका पार्ट वेजेस एंड सैलरीज 800 एंड सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशंस बाय एम्प्लॉयर्स 100. 800 plus 100 and operating surplus. Operating surplus will be रेंट एंड लॉयल्टी. देखिए 300 है तो रेंट एंड लॉयल्टी 300 प्लस प्रॉफिट दिया गया है 500. ये हो गया आपका और देखिए और एक वैल्यू आपका इंटरेस्ट 400 दिया गया है. तो 800 प्लस 100 ये हो गया सीओई में आ गया आपका. ओएस में 300 प्लस 500 प्लस 400 आ गया, यानी कि इसमें आ गया आपका रेंट एंड रॉयल्टी, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट प्लस मिक्स्ड इनकम. मिक्स्ड इनकम का वैल्यू नहीं दिया गया इसलिए इसको जीरो ले लेंगे. तो सारे को ऐड करने पर कितना आएगा आपका रुपीज 22,100 लाख.
ठीक है, तो एनडीपीएफसी निकल गया आपका। ऐसे अब एनएनपीएफसी यानी कि नेशनल इनकम फाइंड करेंगे, तो एनडीपीएफसी में क्या माइनस करेंगे, यहाँ पर देखिए नेट फैक्टरी इनकम पेड टू अब्रॉड दिया गया, इसीलिए यहाँ पर फॉर्मूला में क्या हो जाएगा आपका माइनस। अगर ये फ्रॉम टू अब्रॉड लिखा रहा तो नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड लिखा हुआ रहता तो यहाँ पर प्लस लिखा जाता, पेड टू अब्रॉड लिखा हुआ है इसलिए माइनस लिखा जाएगा। तो एनडीपीएफसी का वैल्यू कितना है 2100 और माइनस ये दिया गया आपका 50 दिया गया, ये देखिए डेटा यहाँ दिया गया है आपका नेट फैक्टरी इनकम टू अब्रॉड 50। अब इसमें लिखिए -50, तो इससे कितना आएगा आपका 2050 रुपीज 2050 लाख आंसर हो गया, एनएनपीएफसी का वैल्यू हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आइटम्स इसमें कितने हैं आपका 1 से लेकर के 11 तक आइटम दिया गया है। तो पहले क्या फाइंड करेंगे, एनडीपीएफसी फाइंड करेंगे। एनडीपीएफसी डेटा में बहुत सारे आइटम्स दिया जाता है, तो जिस आइटम का जरूरत होगा उसी आइटम को हम लेंगे। एनडीपीएफसी इज इक्वल टू सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। अब देखते हैं कि सीओई में कौन सा इंक्लूड होगा, तो वेजेस एंड सैलरीज ये इंक्लूड होगा, एक सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉइज ये इंक्लूड होगा आपका। तो वेजेस कितना हो गया 400 प्लस 50, देखिए यहाँ 400 प्लस 50 लिखा गया। अब ऑपरेटिंग सरप्लस देखिए, इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस कितना है आपका, रेंट 100 प्लस इंटरेस्ट 700 प्लस रेंट इंटरेस्ट हो गया आपका। यहाँ देखिए कॉर्पोरेशन टैक्स है आपका, ये 50 हो गया, और ये प्रॉफिट आफ्टर कॉर्पोरेशन टैक्स ये भी ऐड हो जाएगा 150, यानी कि आपका ओएस में कितना हो गया 100 प्लस 70 प्लस 50 प्लस 150 प्लस मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड कितना है 300 है, तो प्लस 300 किया गया। इन सारे वैल्यू को ऐड करके कितना आएगा आपका 1120। एनडीपीएफसी फाइंड हो गया आपका। अब जीएनपी एमपी फाइंड करना है। क्वेश्चन में क्या निकालना है आपका, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो जीएनपी एमपी इज इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, एनडीपीएफसी प्लस डेप्रिसिएशन प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसमें देखिए एनडीपीएफसी का वैल्यू कितना है 1120 प्लस डेप्रिसिएशन का वैल्यू देखिए, इसमें कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का वैल्यू ही डेप्रिसिएशन होता है आपका, तो यहाँ प्लस 80 किया गया। नेक्स्ट क्या है आपका एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स 140 दिया गया है, तो प्लस 140 कीजिए माइनस एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम सॉरी टू अब्रॉड, तो ये कितना दिया गया है आपका -10 दिया गया है। तो -10 दिया गया है तो टू अब्रॉड है इसलिए प्लस की जगह पर माइनस होगा, और इसका वैल्यू एक्चुअल में कितना दिया गया -10, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये दोनों ये 1120 प्लस 80 प्लस 140 ये तीनों को ऐड कीजिए तो कितना आ जाएगा यह 1340 माइनस माइनस प्लस 10, फिर इसको ऐड कीजिए 1350 लाख आंसर हो गया आपका जीडीपीएमपी का वैल्यू। कैलकुलेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। कैलकुलेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब क्या निकालना है हमें एनएनपी एमपी फाइंड करना है। तो ये आइटम्स और इनका वैल्यू अरब में दिया गया है आपका, तो जिस वैल्यू का जरूरत होगा उसी वैल्यू को लेकर के पहले एनडीपीएफसी फाइंड करेंगे। वी नो दैट एनडीपीएफसी इज इक्वल टू सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। अब सीओई मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड क्या आ जाएगा इसमें, सॉरी मिक्स्ड इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड अलग है आपका। इसमें देखिए कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय 3000, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज यही दिया गया है आपका 3000 हो गया आपका। ऑपरेटिंग सरप्लस में अब देखिए क्या क्या आ रहा है आपका, तो प्रॉफिट आएगा 1000 प्लस रेंट आएगा 600 प्लस इंटरेस्ट 700, देखिए इसमें लिखा गया 600 प्लस 700 प्लस सॉरी 1000, हाँ प्रॉफिट कितना है 1000 प्लस 600 प्लस 700 इंटरेस्ट प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 8000 लिखा गया। तो सारे को ऐड करके कितना आएगा रुपीस 13,300 अरब। नाउ वी फाइंड एनएनपीएमपी नेट national product at market price is equal to formula will be NDPFC plus NFIA plus NIT। तो यहाँ देखिए एनडीपीएफसी का वैल्यू कितना निकाला गया है 13,300। एनएफआईए इसमें वैल्यू देखिए नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड लिखा गया है यार, इसीलिए यहाँ पर माइनस हो गया ये, तो -60 प्लस एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, देखिए इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया गया है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 500, तो प्लस 500 कीजिए
अब ये दोनों के ऐड कीजिए तो 13,800 माइनस 60 13,740 अरब आंसर हो गया आपका एनएनपी एमपी का वैल्यू होगी। कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब क्या फाइंड करना है, एनडीपी एट मार्केट प्राइस फाइंड करना है। तो ये आपका आइटम्स दिया गया है, डिफरेंट आइटम्स दिया गया है और इसका वैल्यू भी दिया गया है। अब इसमें देखते हैं, पहले एनडीपीएफसी फाइंड करते हैं, सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। इसमें सीओई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का वैल्यू कितना दिया गया है, तो इसमें आ जाएगा वेजेस एंड सैलरीज आ जाएगा आपका, वेजेस एंड सैलरीज, और ये आ जाएगा आपका एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। कितना हो गया आपका 500 प्लस 20 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या होता है आपका, रेंट एंड इंटरेस्ट दिया गया है और प्रॉफिट दिया गया है, तो दोनों ऐड हो जाएगा 250 प्लस 400, 250 प्लस 400। और एम आई मिक्स्ड इनकम, इसमें देखिए मिक्स्ड इनकम है, मिक्स्ड इनकम इसमें नहीं दिया गया है, तो ये आपका 500 प्लस 20 हो गया प्लस 250 प्लस 400, ये सारे को ऐड करके कितना आ जाएगा आपका 1170 लाख। अब एनडीपीएमपी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा आपका, एनडीपीएफसी प्लस एनआईटी प्लस एनआईटी, तो कितना हो गया आपका 1170, इस वैल्यू को रखा गया प्लस एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो इसमें जीएसटी जो है आपका ये इनडायरेक्ट टैक्स है 50 और सब्सिडी का वैल्यू कितना है 10 है, तो माइनस 10 कीजिए, क्योंकि एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू क्या होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो अब इसको कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करने पर कितना आएगा आपका रुपीज 1210 लैक्स। कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इसमें डिफरेंट आइटम्स दिया गया है और यहाँ डिफरेंट आइटम्स के वैल्यू दिया गया है। अब इसमें क्या फाइंड करना है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि जीएनपीएफसी फाइंड करना है। तो इसमें भी पहले हम लोग एनडीपीएफसी फाइंड करेंगे, सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। सीओई का वैल्यू देखिए इसमें कितना है, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 250 दिया गया है आपका, तो सीओई की जगह पर 250 लिखिए। ऑपरेटिंग सरप्लस, यहाँ देखिए डायरेक्ट ऑपरेटिंग सरप्लस का वैल्यू दिया गया है, कितना है यह 400 है, प्लस एमआई मिक्स्ड इनकम, देखिए मिक्स्ड इनकम का भी वैल्यू दिया गया है यहाँ, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 200, तो 250 प्लस 400 प्लस 200 इज इक्वल टू रुपीज 850 लाख हो गया ये। अब क्या फाइंड करेंगे हम लोग, जीएनपीएफसी फाइंड करेंगे, तो जीएनपीएफसी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, एनडीपीएफसी प्लस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए। इसमें देखिए आप एनडीपीएफसी तो 850 निकाला गया है, अब ये डेप्रिसिएशन का वैल्यू इसमें कहीं है नहीं दिया गया है, तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करने के लिए डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक्स, देखिए इसमें चेंज इन स्टॉक्स 20 माइनस नेट कैपिटल फॉर्मेशन, नेट कैपिटल फॉर्मेशन। तो अब इसमें क्या करेंगे, नेट हो गया ये फॉर्मूला आपका, प्लस एनएफआईए, एनएफआईए का वैल्यू इसमें दिया गया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस 10 दिया गया, तो ये प्लस होता है, मैंने कहा फ्रॉम लिखा हुआ रहेगा तो प्लस होगा, ब्रैकेट में माइनस 10 लिखिए, तो 850 प्लस, और ये देखिए ये जीएफसीएफ में अगर चेंज इन स्टॉक को ऐड करेंगे तो ये ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लस एनसीएफ नेट कैपिटल फॉर्मेशन, प्लस माइनस माइनस 10 हो गया, तो इसमें जीसीएफ जो है यही रहेगा आपका, जीएफसीएफ क्वेश्चन में दिया गया है 100 दिया गया है, चेंज इन स्टॉक 20 है, और इसमें जो आपका एनसीएफ का वैल्यू कितना है आपका 110 है, और इसमें देखिए 850 माइनस 10 हो गया तो 840 हो गया आपका, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये प्लस 10 आएगा, 840 प्लस 10 इज इक्वल टू रुपीज 850 लैक्स। Now question number 9, from the following data calculate compensation of employees। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें compensation of employees निकालना है, तो इसको कैसे निकाला जाए, ये डिफरेंट आइटम्स दिया गया है, डिफरेंट आइटम्स में देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया गया है, इसमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया गया है, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है 6000, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 2000 है,
कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 800 है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 700 है, प्रॉफिट 500 है, ऑपरेटिंग सरप्लस 1000 है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि एनडीपीएफसी इज इक्वल टू सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई, ये फार्मूला होता है। तो सीओई तो फाइंड करना है, तो सीओई लिखते हैं यहाँ, और ऑपरेटिंग सरप्लस कितना है इसमें, देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस 1000 दिया गया है इसमें। मिक्स्ड इनकम इसमें नहीं दिया गया है, तो मिक्स इनकम को 0 ले लेते हैं। तो एनडीपीएफसी का वैल्यू कितना हो गया आपका सीओई प्लस 1000। अब जीडीपी एमपी फाइंड करेंगे, तो जीडीपी एमपी जैसे कि वैल्यू एडेड मेथड में पढ़ा था कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस क्या होता है आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है इसमें 6000 दिया गया है, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है 2000 है। तो दोनों को माइनस कीजिए, कितना आ गया आपका 4000 आ गया, यानी कि जीडीपीएमपी का वैल्यू कितना आ गया 4000। अब निकालिए एनडीपीएमपी, एनडीपीएमपी इज इक्वल टू क्या होगा आपका जीडीपीएमपी माइनस डेप्रिसिएशन। तो जीडीपीएमपी का वैल्यू कितना है 4000 है माइनस 800। ये 800 देखिए अब कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्या है डेप्रिसिएशन है, इसमें माइनस कीजिए कितना आएगा 3200 आया। एनडीपीएमपी का वैल्यू कितना कितना हो गया आपका 3200। Now we find NDPFC. NDPFC is equal to क्या होता है आपका NDPMP minus NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। जब NDPMP से जब इसको फाइंड किया जाएगा तो NDPFC COE प्लस 1000 इस वैल्यू को लिया गया है, यानी कि NDPFC COE प्लस 1000 है। तो NDPFC के जगह पर लिखा जा सकता है COE प्लस 1000 इज इक्वल टू NDPMP, इसका वैल्यू 3200 निकाला गया है, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें देखिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 700 है, तो NIT के जगह पर 700 लिखिए। अब इसमें देखिए COE इज इक्वल टू, अब इसमें 3200 माइनस 700 करेंगे, 3200 में 700 माइनस करेंगे 2500 होगा, और ये प्लस 1000 को इधर लाया जाएगा, ये माइनस 1000 हो गया। अब इसमें माइनस कर दिए तो ₹1500 लैख COE कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का वैल्यू हो गया। ओके, अंडरस्टूड, समझ में आ गया।